الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کا درس چل رہا ہے اور آیت نمبر 14 سے اس کا آغاز ہوگا، لیکن شروع کرنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے تاکہ آیتوں کے سمجھنے میں آسانی ہو، ویسے صرف ترجمے سے یا ان آیات کے ظاہری مفہوم سے ایسا لگتا ہے کہ اب خونریزی کا میدان ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے، اور حقیقت میں ایسی آیتیں ہیں کہ پکڑیے، گرفتار کیجئے، قید کیجئے، قتل کیجئے، ہے نا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو ایسا لگتا ہے۔ تو ایسا اللہ نے حکم کیوں دیا کہ انہیں پکڑیے، قتل کیجئے، باندھیے؟ اور پھر ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، ابوبکر اپنی ساری دولت لے آتے ہیں، حضرت عمر آدھی دولت لے آتے ہیں، عورتیں، مرد، سب کچھ، اور ہوا یہ کہ تبوک جا کر واپس آئے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم تھا، تو اس کو بھی سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس کا بھی اشارہ ہے، لیکن اس کو واضح نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تاکہ پتہ چلے، اور ضرورت اس چیز کی تھی کہ تیاری کی جائے۔ اور مشرکین عرب کو، جن لوگوں نے ان کی زندگی تنگ کی مکے میں، اور یہی نہیں، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور کئی حملے کیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر جو حلیف تھے مسلمانوں کے، ان پر حملہ کیا، جبکہ عہد میں یہ ہوتا ہے جو ہمارے حلیف ہیں نہ ان پر حملہ کرنے، اور جو ان پر حملہ کریں گے ان کی بھی مدد نہ کریں، مگر انہوں نے مدد بھی کی، اور پھر پردہ پوش ہو کر براہ راست جنگ میں داخل ہو گئے، اور کعبہ میں انہوں نے پناہ لی، پھر بھی قتل کیا۔ تو یہ سبب بنا کس کا؟ فتح مکہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک مکہ پہنچ گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ مشرکین عرب، یہ مشرکین مکہ، ان کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں سے، ان سے ملے، پھر شام کے سرحدوں پر رومی، سب طرف سے ان کے ایک یلغار، جب فتح مکہ ہوا تو مکہ کے مشرکین تو آ گئے، پابند ہو گئے، لیکن دوسرے جو تھے، حنین کی جنگ کا قصہ مستقل آ رہا ہے، وہاں پر جمع ہوئے سارے عرب قبائل، تو ضرورت اس چیز کی تھی اس وقت کہ انہیں کچل دیا جائے، تو اعلان ہوا، مگر کچلا نہیں گیا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو جب آیت پر اسے میں واضح کروں گا، تو اب سنیے اعلان جو ہوا وہ کس کا ہوا۔ پہلا اعلان ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ پہلا اعلان ہے۔ اس کے مخاطبین کون، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو واضح کیا الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان کے ساتھ یہ اعلان ہے، تم نے جن سے عہد کیا صلح حدیبیہ میں اور انہوں نے عہد کو توڑا، ان سے یہ برات، یہ ایک اعلان ہوا۔ اور انہیں حکم، پھر بھی اعلان کیسا؟ ایسا نہیں کہ فوراً انہیں گرفتار کریں، دیکھیے کہ پکڑے نہیں، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ تو فتح مکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہوا، تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اعلان
यानी दूसरा जो ऐलान है उसमें इस्तिस्ना किया जाता है। वो क्या कि जिन्होंने अहद को नहीं तोड़ा उन्हें अपने अहद तक मुद्दत दी जाए। तो फ़र्क हुआ ना ऐलान में, किसी की 2 साल मुद्दत बाकी थी तो 2 साल, किसी के 7 महीने तो 7 महीने, उन्हें मौका दिया जाए। फिर एक तीसरा ऐलान, तीसरे ऐलान में सब आ गए, अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूली इलन नास, इसमें सब आ गए। यौमिल हज्जिल अकबरी, वो क्या, सूरह आले इमरान भी आयत हो चुकी है कि अब हज में कोई मुशरिक शरीक नहीं हो सकता, काबे का कोई बरैना तवाफ नहीं कर सकता, काबे में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ये सबों के लिए। तो ऐलानात मुख्तलिफ हुए हैं। 4 महीने इनकी मुद्दत पूरी की जाए। यही वजह थी कि फ़तेह मक्का के बाद पहला जो हज हुआ उसमें सब थे और जाहिलियत के तरीके से हुआ, इसलिए कि 4 महीने मुद्दत दी गई। फिर जब दूसरा हज हुआ तो मुश्तरक हुआ, अबू बकर सिद्दीक के साथ मुसलमानों ने अपने तरीके से अदा किया और मुशरिकीन ने जाहिलियत किया। फिर जो तीसरा, और उस वक्त ऐलान किया गया कि आइंदा साल कोई मुशरिक यहाँ शामिल नहीं होगा। तो ये है इसका निचोड़। अब इस जी हाँ जी, मतलब दूसरे साल में ऐलान हुआ। ये जो ऐलान है, पहले साल में जाहिलियत रस्म के मुताबिक हज हुआ और दूसरे साल अबू बकर सिद्दीक को अमीर बनाकर भेजा गया, तो उनसे ये कहा गया कि आइंदा साल यानी तीसरा, तो उसमें वो है तीसरा कौन सा, हज्जतुल विदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें तशरीफ़ ले गए। तो ये वाज़ेह हुआ। तो अब सुनिए, तो ये आयतें हैं। अच्छा, फिर उसमें कुछ लवाजिमात हैं कि इन्हें पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, बांधिए, कुचल दीजिए। ये किन से खिताब है? जो न माने, 4 महीने की मुद्दत दी गई, अब भी नहीं मान रहे हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लें, और जो दूसरी तरफ है रूम वगैरह, या है कि जिज़िया दें। अच्छा, अब ये जो हुक्म हुआ कि पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, कत्ल कीजिए, तो सुनिए अभी ये आयत आज की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन व युज़हिब ग़यज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। देखिए आयत पर गौर करें, क़ातिलूहुम, कत्ल करें। अल्लाह उन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों से, रुस्वा करेगा उन्हें, मदद करेगा तुम्हारी उन पर। वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन, शिफा मतलब जो मोमिनीन हरासा थे, इसलिए कि मक्के से उन्हें निकाल दिया गया था, तो उन्हें सुकून हासिल होगा। युज़हिब ग़यज़ क़ुलूबिहिम, दिल में जो गुस्सा था उसे ठंडा करेगा। मगर अब देखिए किरण कैसी है, मालूम होता है कि कत्ल करो, अजाब दो इन्हें, यतूबुल्लाहु अला मन यशा। इस आयत, इस टुकड़े पर भी गौर करें, क्या मतलब यतूबुल्लाहु अला मन यशा, कि यही मुशरिकीन जिनके मुतालिक बाबत मुसलमानों की दिलों में गुस्सा है, अगर ये रुजू करें, इसलिए इसका नाम है तौबा, रुजू करते हैं 4 महीने से पहले, या जिनके दरमियान जो मुद्दत है वो सब यानी इस्लाम ले आते हैं, तो अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो क्या हिकमत, अलीमुन हकीम, ये ऐलान क्यों हो रहा है और फिर क्यों खूनरेजी नहीं हुई? सिर्फ आयतों को हम देखते हैं, खूनरेजी तो नहीं हुई, सिवाय उनके जो हुनैन के आए थे जमा होकर सारे कबाइल, उनके साथ जंग हुई है और उन्हें शिकस्त दी गई। तो सुनिए, अब मुसलमानों को ये किरण बतला कर उभारा जा रहा है, किसके लिए? जंग के लिए। तो यहाँ से लोगों को गलतफहमी होती है कि नहीं, हमें तो उभारा जा रहा है जंग के लिए, हमें तो कहा जा रहा है कि इनसे लड़ें। पहली बात यह है कि ये किन से कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। फिर हम आज के मुशरिकीन को उनसे मुनासबत रखें और इनके खिलाफ ऐसा बयान दें, तो कुरान के उस पस मंज़र से, उस रूप से हम हट जाते हैं। तो सुनिए, पहले उभारा जा रहा है, देखिए,
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون. کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے گمان کیا اے مومنوں کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر جہاد کے، بغیر جنگ کے؟ تو دیکھیے تیار کیا جا رہا ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدین کو جانا نہیں. کیا مطلب جانا نہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں، ہر فرد کو جانتے ہیں کہ کون مومن ہوگا، اس کے اولاد کتنی ہوگی، وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں، سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب اللہ کی یہ جاننا اس بنیاد پر لوگوں کو جنت میں اور دوزخ میں نہیں بھیجے گا، بلکہ طریقہ کیا ہے؟ تمہاری جانب سے اثبات ہو، یہ نہ جانے کہ تیاری کریں تو عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم تیری راہ میں قربانی کرنے والے ہیں، ہم قربان ہیں، یہ نہ جانے، لہذا تیاری کریں. اور یہ نہ جانا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا، اور نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کسی سے گہری دوستی. دیکھیں ولیجا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن ہے کلام پاک میں ہے. یولج اللیل فی النہار، ہے نا، یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، یہ ہے. تو ولیجا کے معنی کیا؟ باطن، گہری دوستی. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے گہری دوستی؟ اس لیے کہ جو حضرات ہجرت کر کے آئے تھے، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا باپ تھے مکے میں، تو ظاہر بات ہے کہ رشتے کا پاس رکھا جا سکتا ہے نا. تو نہیں، دین ایسا ہے کہ باطنی دوستی کسی سے نہیں، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین. اور احادیث بخاری میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول، وہ زیادہ محبوب نہ ہو. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ خوب ان سے واقف ہے. اب جس وقت یہ مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ کعبہ کس کے تولیت میں تھا؟ مشرکین کے. تو وہ تانا دیتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کعبہ تو ہماری ذمہ ہے، ہماری تولیت میں، ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، متولی ہیں، اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. کئی آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے جعلتم سقایۃ الحاج، تو ہم آیت در آیت پڑھتے ہیں. مشرکین کے لیے ما کان جب یہ آتا ہے تو لا ینبغی یعنی مناسب نہیں. کیا مناسب نہیں؟ کہ یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجد کی تعمیر کریں. اچھا، مساجد یعنی مسجد ہے، وہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ کعبہ شریف کی. ایک ہی مسجد تھی مدینہ میں، ابھی نماز شروع کیے تھے. تو کیوں مساجد کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مسجدیں ہیں پوری دنیا میں سب اس مسجد سے مربوط ہیں. جب تک کعبہ باقی ہے یہ مسجدیں باقی رہیں گی. جس وقت اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے ان چیزوں کو ہٹانا ہوگا تو کعبہ ٹوٹ جائے گا، تو ساری مسجدیں ختم ہو جائیں گی. تو مساجد کے معنی کیا؟ مرکزیت. اچھا، تعمیر ان کے لیے مناسب نہیں. تعمیر کا مطلب کیا؟ تعمیر کا مطلب یہی نہیں کہ اینٹیں لگا دی جائیں. تعمیر کا مطلب اینٹیں لگا دی جائیں، پلاسٹر کیا جائے. تعمیر میں ترمیم بھی آتی ہے. ترمیم یعنی کیا کہیں گے، جو ریپیئرنگ ہوتی ہے نا، وہ بھی اس میں آتی ہے. ایک شخص نے مسجد تو تعمیر نہیں کیا لیکن کچھ چونا وغیرہ اس کا نکل گیا، دیواریں گر رہی ہیں تو اس کو پلاسٹر لگا دیا، یہ بھی تعمیر میں آتا ہے. بڑا وسیع لفظ ہے یہ. اچھا، پھر تعمیر میں کیا آتا ہے؟ کعبے میں جا کر جو وہاں بیٹھے، یہ بھی تعمیر میں آتا ہے.
क्यों? तो उसने इजाफा किया, अल्लाह की मखलूक बैठी देख रही है। तवाफ़ करे ये भी तामीर में आता है, नमाज पढ़े ये भी तामीर में आता है, पैसा दे ये भी तामीर में आता है। तो मस्जिदों को तामीर का मतलब बड़ा वसी है। मस्जिदों में नमाज पढ़ें ये तामीर है, जाकर बैठें ये तामीर है, रंग रोगन करें ये तामीर है, ये सब तामीर में आता है। तो ये किसके मुनासिब है? मुशरिकीन के मुनासिब नहीं। क्यों? शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, कि अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। देखिए, अल्लाह को मानते थे, काबे का तवाफ करते थे, मगर चूंकि उन्होंने गवाही दी कैसी? अमलन। तो गवाही दो किस्म की है। उस गवाही को जरा सामने रखें कि जिस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने आदम की औलाद की पुश्तों से सारी रूहों को निकाला, वो अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और हर एक से अपने आप की गवाही ली। कालू अलस्तु बिरब्बि, काल अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला शहीदना, उन्होंने गवाही दी। ये दूसरी गवाही, ये कौन सी? ये मुशरिकीन की नहीं, हम भी गवाही देते हैं। लिहाजा ज़रा यहाँ गौर से सुनिए। हम में से हर एक ने अरफात के दिन नौमानी जगह पर गवाही दी, बला शहीदना, तू हमारा रब। अब कौन सी गवाही दे रहे हैं? मुशरिकीन तौलियत किसकी कर रहे थे? काबे की। ज़बान से गवाही दे चुके थे और अब भी दे रहे थे, मन खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह। मगर अमलन क्या गवाही दे रहे थे? बुतों को अंदर रखा था। तो देखिए, अमलन उसकी गवाही क्या थी? शिर्क। तो कोई भी फर्ज ज़बान से गवाही दे, लेकिन अमलन वो गवाही दे शिर्क की, तो उसका शुमार मुशरिकीन में होगा। अब ज़रा सोचिए, हम मुसलमान हैं, कई मसाजिद हमारी ऐसी हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, अंदर मजलिसें कायम करते हैं, हमारे यहाँ जमात खाना, फिर बाहर सुन्नत खाना है ना, हमारे यहाँ एक दस्तूर है, जमात खाना फिर सुन्नत खाना, फिर वुदू खाना, फिर इस्तिंजा खाना, फिर सहन जहाँ लोग आके बैठते हैं, ज़रा सांस लेते हैं, फिर और एक खाना होता है जहाँ क्या होता है? किसी बुज़ुर्ग की कब्र। तो अल्लाहु अकबर की निदा होती है, नमाज पढ़ी जाती है, शहादत, और अमलन कौन सी शहादत? बस। तो हमारी तवज्जो सिर्फ मुशरिकीन मक्का की तरफ न हो, मेहनत करें कि हम भी शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। क्या ये कुफ्र नहीं? अल मसाजिदु लिल्लाह, मसाजिद किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर ये क्या बात है? तो इसको इन आयतों के साथ साथ हमारे उलाइका हबितत अमालुहुम, अल्लाह अल्लाह, अमल से गवाही। देखिए, एक शख्स अजान होती है, कहता है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इल्लल्लाह अशहदु अल्लाह, जवाब देता है, और अजान ख़त्म हुई तो दुआ पढ़ता है और फिर बैठा रहता है, सो भी जाता है, खाना खाता है। बताइए, ये गवाही हुई? नहीं। अमलन एक शख्स अजान हुई, बस वुजू किया और चला नमाज को, मुंह से कुछ नहीं कहा, उसने गवाही दी। तो असल ये गवाही ज़बानी और अमलन। हबितत आमालुहुम व फिन्नार हुम खालिदून, अल्लाह अल्लाह। अमलन जिसने गवाही शिर्क की दी तो हबितत आमालुहुम। अच्छा, अब देखिए मसाजिद कौन तामीर करेगा? तो सुनिए, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। हाँ, मस्जिद को आबाद करना किन की शान है? आमन बिल्लाह, मोमिन, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन, वो तामीर करता है। ये तो मोमिन हुआ। एक मोमिन है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तो रसूलों पर ईमान। यहाँ इख्तिसार किया गया है कि जब आखिरत पर ईमान रखेगा तो रसूल के ज़रिए से। लेकिन देखिए, अक़ामस्सला व आतज़ ज़का, क्या कहा गया?
وہ اگر عملاً گواہی دے رہا ہے نماز اور زکوٰۃ اور اللہ سے ہی ڈرتا ہے تو یہ ہیں کیا راہیاب. یہ بہت اہم آیت ہے. حدیث بھی اس پر ہیں، حدیث بھی اس پر آ رہی ہے، وہاں بھی اس کی شرح ہوگی. لیکن کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایک شخص ایمان لے آیا، اگر صرف ایمان لایا اور نماز زکوٰۃ اس میں نہیں ہے تو گویا کہ گواہی عملاً وہ غلط دے رہا ہے. دوسری چیز، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے ساری دنیا مومن سمجھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے. یہی وہ وجہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا. نماز پڑھ رہے، ہم نماز تو پڑھیں گے. تو یہ آیات اور احادیث کی بنیاد پر نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بھی ان سے لڑوں گا. اس کا مطلب تم گواہی خلاف دے رہے ہو. تو یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے. اچھا، دوسری چیز اس میں ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ظاہری عمل ہوا، پھر انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، تو کسی نے یوں نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ابھی منافقت پر اتر آئے، ابھی آپ سے ڈر کے دے رہے ہیں زکوٰۃ. نہیں، ظاہری عمل کر رہے ہیں، اسے قبول کیا جائے گا اور انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا. اب جس پر یہ اتراتے تھے تو ذرا واضح کر کے بتلایا جا رہا ہے. سنیے، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کرتے تھے، کر رہے تھے، مگر یہ عمل تمہارا کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اب اس کے ساتھ تیسرا وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اس لیے کہ مہاجرین نے ہجرت کی، انصار نے مدد کی اور جہاد کیا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. تو یہ ظالم کون سے؟ جنہوں نے عملاً شہادت دی شرک کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. اب ان کے ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ جنہوں نے ہجرت کی ان کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. سنیے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو ایمان لائے اور ہجرت کی، یعنی مہاجرین، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ، عظیم مرتبہ ہوگا ان کا اللہ کے نزدیک، اور یہی کامیاب. فائزون، ہمارے یہاں بھی کامیابی ہوتی ہے اسکولوں میں اور مقابلے میں. فائز، یہ فائزون. لیکن فرق ہے، فائز کہیں گے کسے؟ یہاں کیا مطلب ہے فائز کا؟ بچے اسکول میں کامیاب ہوتے ہیں تو مقابلے میں ہونا ضروری ہے کہ ایک بچہ کامیاب ہوا تو دوسرا 2 نمبر سے آیا تو یہ اس کے مقابلے میں، تو دوسرا تیسرے کے مقابلے میں. لیکن اگر کسی اسکول کا رزلٹ 100% نکلے تو پھر کیا کہتے ہیں ہم انہیں؟ 100% رزلٹ نکلا، 20 بچے تھے، 20 کامیاب ہوئے، تو اسے بھی فائز، یہ بھی فائز. تو یہ جتنے بھی ہجرت کر کے گئے سارے فائز. تو کس کے مقابلے میں؟ مقابلہ کس کا؟ مشرکین کے مقابلے میں. تو کلاس میں سب فائز، سب کامیاب، تو دوسرے اسکول کے مقابلے میں. تو فائز کا یہی مطلب نہیں کہ پہلا نمبر دوسرا نمبر، اولئک هم الفائزون. لیکن فائز پر بھی اکتفا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے مہاجرین، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، یہ ان کے مناقب میں ہے. مناقب یعنی ان کے فضائل میں آئے تھے. تو سنیے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا
ان اللہ عندہ اجر عظیم. دیکھیے گنیے کتنے ہیں. بشارت دیتا ہے اللہ ان کا رب رحمت من رحمت ایک, ورضوان رضامندی دو, جنات لہم ان کے لیے جنتیں باغات, نعیم مقیم پائیدار نعمتیں. تو رحمت رضوان جنت پائیدار نعمتیں چار ہوئے. خالدین پانچ, خالدین کے معنی ہمیشہ. پھر ابدا, تو ابدا میں خالدین میں فرق ہے نا. ہاں ابدا کی کوئی حد نہیں. دیکھیے پھر سنیے اور ایک, ان اللہ عندہ اجر عظیم, اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے. تو چلیے رحمت, بشارت, امید کی کرن, بشارت اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں. رحمت ظاہر ہے کہ رحمت ہم جان چکے ہیں کہ ایک تو رحمت ہے ایک تو مغفرت ہے. تو یہ سب بات کے درجے ہیں. اصل رحمت کیا ہے؟ اصل رحمت اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے رحمان اور رحیم, اگر رحم کر لے کس پر تو پھر اس کی کتنی خطائیں ہوں کتنی لغزشیں ہوں وہ اس کی رحمت آغوش میں چلا گیا. اصل رحمت کے لیے دو اللہم ارحم الرحمن الرحیم, اور یقین مانیے کہ اس کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی. یہ ہو رحمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے نصیحت کی تھی کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں جانے کا گھمنڈ نہ رکھو, رحمت. تو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ بولے میں بھی. اب جب رحمت میں چلے گئے اب رہا کیا؟ تو رضوان, راضی. راضی یعنی کیا؟ خلاص اب آپ سے ہو راضی. جب ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بھی حرکت کوئی بھی فعل. پھر باغات, پھر باغات تو ہیں لیکن نعیم اور مقیم. جنت تو مل گئی, تو جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی بلکہ کیسی پائیدار. بھائی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں سوچیں گے یہ ختم ہو جائے گی, نہیں یہ ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا کی نہر نہیں کہ کنواں سوکھ جاتا ہے پانی سوکھ جاتے, نہیں. نعیم مقیم. اچھا خالد, چلیے ہمیشہ رہیے, ہمیشہ 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 تک ابدا. اور اس سے بڑھ کر بھی اجر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں, ہمارے پاس وہ کان نہیں, ہمارے دل میں وہ خیال تصور نہیں کہ جنت کا ہم تصور کریں. یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ جنت ایسی چیز ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جنت کہہ دیا گیا کہ ام حسبتم ان تترکو, کیا تم نے جانا کہ تمہیں ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ تیاری کس کی ہوئی؟ جنگ. مگر جنگ ہوئی نہیں ہوئی. تو اب سنیے, یہ اس لیے ہوا کہ رعب دکھانا تھا, چنانچہ یہی ہوا. شرحبیل اور شرحبیل جسے سرجیل کہتے ہیں, کتنی فوج لے کر آیا تھا؟ 1,00,000 کی. 3,000 دستے, 3,000 کا دستہ گیا, اسے شکست دے دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ شام کی سرحد پر روم والے جمع ہونا شروع ہوئے اور تیاری ہوئی اور ابھارا گیا. تو اس پس منظر کو سمجھیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک پہنچے ہیں کوئی بھی فوج سرحد پر نہیں, سب چلے گئے کہ ان سے کیسے نمٹا جائے گا. 20 روز پڑاؤ کیا ہے, 20 روز 15 روز تو تاریخ میں اختلاف رہتا ہے, اور پھر واپس ہوئے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت تھی کہ جمع ہوں نکلیں. تو یہ عالم اللہ, تو اللہ نے جان لیا کہ کون نکلے, بس یہی جاننا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی, جاننا تھا. تو اللہ تو جانتے تھے ایک نبی ہے, مگر نہیں اس بات. تو یہ ہے پس منظر. اور مخاطبین کون تھے اس وقت؟ اسلام کو جو کچل دینا چاہتے تھے. واقعی آیتوں کو لے کر آج ہم
बढ़ाएं आगे तो हम मैदान से हट रहे हैं, इसका ख्याल रखिए। और ज़रूरत इस बात की थी, अल्लाह तबारक ताला आजमाना चाहते हैं अगर कोई हिम्मत करे, बाकी अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि जंग व जिदाल हो। अरब तो सारे के सारे ईमान ले आए और दाखिल हुए, और अतराफ़ वाले भी डर गए। फिर जिजिया वगैरह ये जुआ, फिर अंदरूनी मुश्किलात मदीना के। अब चूँकि इतनी आयतें हुई, आइंदा आएगा एक एक आयत। मदीना वालों ने मस्जिद बनाई, मुनाफिकीन ने, उसका भी जिक्र है। तो अब सुनिए, अब जो चीज़ कही जा रही है वो सुनिएगा, और इत्तेफाक से हमारा दर्स भी उसी पर चल रहा है बुखारी का, तो मुताबकत है और अच्छी तरीके से समझ में आएगी बात। तो सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, अपने बाप दादा भाई बहन को दोस्त मत बनाओ। पस मंज़र क्या है, मक्के से आए थे, रिश्तेदार थे, कुछ कबाइल भी ईमान ले आए थे। अब सवाल है कि उनके दिल मुअल्लक थे, तो कहा जा रहा है कि नहीं, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, यह है मोहब्बत का जिक्र। और हमारा बाप चल रहा है ईमान का, बुखारी का। अगर ये लोग, अब मोहब्बत का तर्जुमा तो एक ये बतलाया था कि मोहब्बत है ना, अब क्या तर्जुमा करेंगे मोहब्बत का दूसरा, कि अगर वो तरजीह देते हैं कुफ्र को ईमान पर, तो उन्होंने कुफ्र को से मोहब्बत की। मुसलमान तरजीह देते हैं किसको, ईमान को, तुम ईमान से मोहब्बत की, ताकि हदीस के समझने में आसानी हो। तो इन्हें अपना दोस्त न बनाओ अगर वो कुफ्र को तरजीह देते हैं, अपना सरपरस्त भी न बनाओ, उनसे कता ताल्लुकी। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, तुम में से जो उन्हें दोस्त रखे, फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो वो जालिम। तो कौन जालिम? देखिए कितना कठिन मसला है। बाप है, बेटा है, भाई है, मक्के में मुशरिक हैं, जो उन्हें उनसे दोस्ती रखे, तो जालिम कौन? हम उन्हीं को जालिम कहें, यानी जो मुशरिकीन है वो जालिम है, और फिर खिताब तो मुसलमानों से है। तो ये है आयत, इसकी रूह को समझना। अगर कोई मुस्लिम ऐसे फर्द, ऐसा शख्स उसका रिश्तेदार है, वो कुफ्र को तरजीह देता है और ये उससे मोहब्बत रखता है, तो वो नहीं, यही जालिम है। अगर आप कहते हैं वो जालिम है, तो फिर हमारे लिए क्या नसीहत? उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून कौन? ये है आयत। लेकिन मतलब क्या? हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, ये आयत कभी भी नफरत का बीज नहीं बो रही है, समझना है। इस आयत का यह मतलब नहीं कि जितने आज मुशरिकीन दुनिया में रहते हैं अब उनसे ताल्लुकात न रखें, यह मतलब नहीं। फिर उन तक दावत कैसे पहुंचेगी? अब इन आयतों से इसका भी मतलब गलत लिया जाता है। हमारे पड़ोस में है, गैर हैं, तो इंसानियत और कोशिश ये करना कि कहीं से हम बात उन तक पहुंचाएं। लेकिन अगर हम उनके उस कुफ्र में शरीक रहे, जैसे कि उनके यहाँ जो त्यौहार वगैरह होते हैं उनके साथ में, तो ये तो फिर जालिम वो नहीं, जालिम कौन? हम। जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे भाई आजकल जो हो रहा है कि अमली तौर पर जो शिर्क जाहिर करते हैं, जैसे मज़ारों वगैरह का, तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ शरीक हों, चले हमारा रिश्ता है, तो जालिम वो नहीं। जालिम कौन? ये है, इसलिए कि वो तो ला याक़िलून, हम तो अक्ल वाले हैं। तो कहने का मकसद इस आयत का यह मतलब भी नहीं कि उनसे ताल्लुकात न रखे जाएं। आयत का यह मतलब भी नहीं कि वो जालिम है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इस शरफ से नवाजा कि इसमें गौर व फिक्र करे। अब सवाल आता है मोहब्बत का, और हदीस भी गुजर चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तक हलावतल ईमान इंसान नहीं पा सकता जब तक कि अल्लाह और रसूल के सिवा जो है उनसे ज़्यादा महबूब मैं न बन जाऊँ, है ना, यानी अल्लाह रसूल हम महबूब न बन जाएं। तो इस हदीस के मुताबिक ये आयत है, तो सुनिएगा।
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ سنیے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، آباؤکم میں ماں باپ دونوں آئے، ابناؤکم بیٹا بیٹی آئے، اخوانکم بھائی بہن آئے، ازواجکم میاں بیوی دونوں، بیوی کے لیے میاں، میاں کے لیے بیوی، عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، وہ اموال تو نقترفتموها جسے تم نے سمیٹا ہے نا، کسی کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، جو بھی ہے، وہ تجارتن تخشون کسادہا بزنس کا مال، جائیداد، راس المال کہ اس کے ماندے پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اس لیے کہ پھر بکنا چاہیے نا جی، اور مکانات، بنگلے، ترضونہا کہ تم ان سے راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ چیزیں جو گنوائی ہیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیلہ، ساری چیزیں گنوانے کے بعد کس سے زیادہ محبوب؟ اللہ، اس کے رسول اور جہاد، چونکہ اس وقت جہاد کا موقع تھا، تبوک کے لیے جانے کا اعلان ہوا تھا، فتربصوا تو انتظار کرو، کس کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے، تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا آئے گا، اگر اللہ، رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو پھر فیصلہ کیا آئے گا؟ فیصلہ یہ آئے گا کہ اللہ کا عذاب، یا فیصلہ یہ آئے گا کہ تم سے اس نعمت کو ہٹا کر دوسروں کو اقتدار دے دیا جائے گا، کس کی بنے، کیوں، بموجب کیا، وجہ کیا اس کی؟ کہ اللہ، اس کا رسول اور جہاد سے بھی زیادہ محبوب تم نے اپنے آپ کو جانا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری جان کے سوا آپ میرے لیے سب محبوب ہیں، تو استثناء کر دیا نا، جان کے سوا، تو فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ، وہ حدیث گزر چکی ہے، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں اور سارے لوگ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، تو بولے کہ اللہ کے رسول آج سے میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، تو فرمایا کہ اب تم پکے مومن ہو، یہ ہے محبوب۔ تو محبوبیت کا مطلب کیا؟ دیکھیے، تجارت ہے، مکانات ہیں، بیوی ہے، بیٹا ہے، تو محبوب کا مطلب کیا، محبت کا مطلب کیا؟ ایک تو ترجیح دینا، مگر یہ محبت، ایک تو محبت ہوتی ہے طبیعی، ایک ہوتی ہے عارضی، ایک ہوتی ہے جنون، ہمارے یہاں اس کا نام عشق ہے۔ قیس کو جانتے ہیں، ہمارے نہیں جانتے، قیس یعنی مجنون، اس کا نام اصل میں قیس تھا۔ قیس کو لیلا سے محبت تھی، اس کا ترجمہ صحیح کیا، مجنون یعنی پاگل۔ زلیخا کو یوسف سے محبت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں محبت نہیں تھی، قرآن شریف میں محبت کا لفظ نہیں ہے ان کے لیے۔ شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، محبت کا ہے، تو قیس کو لیلا سے محبت کا ہے، اس کا تو مجنون ترجمہ کیا ہے نا۔ تو طبیعی محبت اور عارضی محبت اور عشقیہ محبت، تو سنیے، عشق کسے کہیں گے اور محبت کسے کہیں گے؟ عشق اسے کہیں گے کہ عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، عقل والوں کے نزدیک اس کا نام محبت نہیں۔ دیکھو قیس مشہور ہوا، کسی نے تسلیم کیا، یہ کیا محبت تھی اس کی لیلا سے؟
अकल वाले ऐसे तस्लीम नहीं करते। जुलेखा की मोहब्बत को तस्लीम नहीं किया। ये क्या मोहब्बत है कि अपने ही एक लड़का असा यनफ़अना औ नत्तखिदहु वलदा, हमें नफ़ा देगा, घर का काम करेगा, या बड़ा होगा तो 100 दिनार के बजाय 1000 दिनार में बेच देंगे, या लड़का बना लेंगे। जब 23 साल को पहुंचता है तो कहते हैं कि आ जाओ, रात को बुलाती है जी, इनकार करते हैं तो जेल में भेज देती है, खबर भी नहीं लेती। इसका नाम मोहब्बत है? नहीं। तो कौन सी मोहब्बत? बीवी है, आप कहते हैं कि रसूल मुझसे ज़्यादा महबूब, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बीवी बच्चों को फिक्र ही न करें। और इसको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स से पूछा था कि कैफ अस्बहता, मियाँ कैसे सुबह हुई? पूछते ना, यहाँ हम पूछते हैं कि कैसे, क्या खैरियत है? तो बोले कि ओ मैं तो उठा, उहिब्बुल फितन अकराउल हक़ मुसल्ली बिदून वुदू वलिय फिद दुनिया मा लहू फिल लिल्लाह। ये कहा तो हज़रत उमर गुस्सा में भर गए। क्या कहा उसने जानते हैं? मैं उठा तो फितने को पसंद करता हूँ, ऐसी हालत में उठा, और हक को नापसंद, और बगैर वुज़ू के नमाज, और मेरे पास वो है अल्लाह के पास आसमान में नहीं। बताइए, कभी आप सुनेंगे ऐसे को क्या कहेंगे जी? मगर क्या मतलब था उसका? उहिब्बुल फितन। देखिए इंसान जब उठता है तो उसको मियाँ बीवी की फिक्र रहती है। बच्चे वाले जानते हैं, रात को उठते हैं तो फिक्र रहती है बच्चा कहाँ सोया है। क्या नाम इसका? मोहब्बत है ना, मोहब्बत। तो वो हज़रत अली ने तर्जुमा कर दिया, नहीं तो हज़रत उमर तो उसको गिरफ्त करने वाले थे। बोले या अली मादा यक़ुल, तो बोले क्या कहा? तो ये बोले सदक, बोले कि उसने सही कहा। अब वो शरा करते हैं हज़रत अली, बोले सच तो कहा, वही बुल फितन। सुबह उठते इंसान को फिक्र रहती है, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, रहती है ना, माल मेरा कैसा है। तो क्या इसका नाम रसूल से मोहब्बत नहीं? नहीं। अकरोल हक का, सुबह उठा तो शुक्र अदा किया कि मौत वाक़ई नहीं हुई, मौत तो हक है, और उठते ही देखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो उसमें क्या है? बगैर वज़ू के। और बोले उसके लड़की लड़कियां हैं, अल्लाह के पास हैं। हाँ, ये बात हुई। ये तो फसाहत है अरबी की। तो बात ये बताना है कि क्या माने मोहब्बत के, कौन सी मोहब्बत? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए, बोलते या बाबा मा लक ला तामन्ना अला यूसुफ। क्या बात है, हम पर भरोसा नहीं? लयूसुफु अखु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, कि यूसुफ और उनका भाई उनसे उनको ज़्यादा महबूब है। तो क्या बात है, मोहब्बत कौन सी? बीवी की भी फिक्र है, बच्चों की भी फिक्र है, बाग की भी फिक्र है, घर की भी फिक्र है। बताइए, सब चीज़ें छोड़कर बात बन सकती नहीं। तो मोहब्बत कौन सी मुराद है? मोहब्बत तबीई, यानी रसूल और अल्लाह, इनकी मोहब्बत को तरजीह दी जाए बीवी की मोहब्बत पर। क्या मतलब? यह मतलब नहीं कि बीवी से मोहब्बत न की जाए। तिजारत पर, यह मतलब नहीं कि तिजारत न की जाए। यह मतलब नहीं बच्चों की देखभाल न की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाते हैं, जब बच्चे को प्यार किया तो आराबी ने किए, कहा कि आप बच्चों को प्यार करते हैं, बोसा लेते हैं, मैंने तो कभी नहीं लिया। तो बोले ये कैसे? रहम करो बच्चों पर। तो मुराद क्या है? जैसे कि इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कुफ्र को तरजीह दी ईमान पर। लिहाजा रसूल अल्लाह, इनकी मोहब्बत अपने बीवी बच्चों को तरजीह न दो। इनकी तरबियत कैसी हो? अल्लाह रसूल के कवानीन के मुताबिक हो। ये है मोहब्बत का मतलब। और ये जो हम बुखारी में हदीस पढ़ रहे हैं ना कि मोहब्बत मोहब्बत, तो ये मुराद है। एक इंसान तिजारत कर रहा है, अब माल उसका है, अगर ये रह गया तो उसकी वो सड़ जाएगा, लिहाजा झूठ बोलता है। बताइए किसको इसने तरजीह दी? तिजारत को तरजीह दी। किस पर? रसूल की मोहब्बत पर।
मकानात बागात, तो बात बिल्कुल वाज़े है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह यहाँ फासिकीन कहा गया, कहीं जालिमीन। जालिम किसे कहेंगे? फासिक जालिम में फ़र्क है। जालिम उसने अमलन साबित कर दिया कि अल्लाह का कोई शरीक है, वो जालिम है। देख रहे हैं ना आयत, आप आयत देख रहे हैं। यहाँ उसने मोहब्बत में, तो इसे फासिक कहा गया। तो फ़र्क है आयत का। अच्छा, अब ये चीज़ें जो ऐसी हैं, फुका इस पर मेहनत करते हैं, है ना, फुका करते हैं। फुका ने यही काम किया है, इससे बड़ी सहूलत मिलती है। भाई किसी से नफ़रत की जाए तो क्यों, किसी से मोहब्बत की जाए तो क्यों, तो उसके लिए हदीस इसी मौजू पर आज है। तो आज हम ये मतलब यहीं तक, चूँकि आइंदा फिर जंग हुनैन का जिक्र आ रहा है, मगर इसी आयत को लेते हुए अब बुखारी की हदीस, उसमें भी मोहब्बत है और यही चीज़ें हैं, तो उसमें हम पेश करते हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमैन। तो अभी बैठे रहिए दर्स में, एक लम्हे के बाद बुखारी का दर्स शुरू होगा। लीजिए यहाँ से। बुखारी का दर्स है, हमारा बाब चल रहा है कि ईमान का, और हदीसें चल रही हैं किसकी? मोहब्बत की। और उसके बाद अंसार से मोहब्बत, ये भी ईमान है। अब जो बाब चला है वो हया, और उसके बाद इसी आयत की शरह जो है, फ़ैदन शरखल अशहुरुल हुरुम, दूसरी हदीस में वो आए थे। तो सुनिए भी, पहली हदीस है हद्दसना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र अला रजुल मिनल अंसार व हुवा यईदु अखाहु फिल हया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हयाउ मिनल ईमान। गुज़र हुआ एक अंसारी के पास से, तो अपने भाई को वो नसीहत कर रहा था। किस बारे में? अल हया। तो क्या नसीहत कर रहा था? गिरफ्त कर रहा था उसकी। क्या हो गया तुम्हें? हमारे यहाँ कहते हैं ना, कैसे आदमी है, खातून से भी ज़्यादा शर्मिंदगी तुम्हारे अंदर है। ये इस तरह हिताब कर रहा था। वो बेचारा हमेशा संजीदा और शर्मिला, गुफ्तगू, गुफ्तार, अंदाज सब। तो उसे नसीहत कर रहा है कि औरतों की सिफात तुम्हारे अंदर है, क्या इतनी शर्म करते हो? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया दाहू, छोड़ो उसे, हिताब मत करो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि शर्म करना, हया करना ईमान से है। तो अब इसमें हमें क्या जानना है? सबसे पहले हया किसे कहेंगे, शर्मिंदा किसे कहेंगे, और फिर इसकी कैफियत क्या है। तो सुनिए, हया और शर्मिंदगी उसे कहेंगे कि हर इंसान या कोई इंसान किसी बुराई को अपनी तरफ मंसूब करने से डरे, इसका नाम है शर्म। है ना, इंसान कोई हरकत लोगों के सामने नहीं करता कि लोग मेरी तरफ मंसूब करें कि ऐसी क्या हरकत करता है, इसका नाम है क्या? शर्म। अकेले में वो करता है हरकतें, लेकिन मजमे में नहीं करता है। अब जब मजमे में नहीं करेगा तो ये अच्छी बात है, ईमान की सिफत है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते दाहू, छोड़ो, ये ईमान की सिफत में से है। अच्छा, अब इसका दर्जा क्या है? तो फुक़हा ने कि भाई अगर कोई हराम फेल है तो हराम फेल के करने से शर्म करना ये वाजिब है। देखिए कैसी तकसीम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर कोई मकरू फेल है तो, यानी कई चीज़ें ऐसी हैं कि मुस्तहब, मकरू, तो कहते हैं उनसे फिर उसी दर्जे का है। बाकी है कि हया इंसान के अंदर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि हया की कैफियत क्या है, यानी किस तरीके से हया हो। हया की कैफियत ऐसी है, इंसान ऐसी शर्मिंदगा हो कि जैसे कि इंसान अपने आप को अंगार में दाखिल होने से बचाता है, इस तरीके से किसी बुराई को अपनी तरफ मंसूब करने से वो बचाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़राइज़ हैं, ज़कात है, रोज़े हैं, मस्जिद में जाने से शर्माए। भाई फ़र्ज़ है, भाई मैं नहीं जा रहा, वहाँ तो बाज़ार है बीच में,
ख़वातीन का मजमा है, तो ये उसकी हया बेजा होगी, फ़र्ज़ के लिए शर्म नहीं। तो शर्म कहेंगे किसे, हया किसे कहेंगे? और बाज़ दफ़े उस यानी जैसे फ़राइज़ में अज़ान अलल ऐलान कोई शर्मिंदगी नहीं, बकिया दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे शर्मिंदगी क्या है। वरना बाज़ बहाना तलाश करते हैं। बाज़ तो यूँ कहते हैं कि हम मस्जिद में जाएंगे तो वज़ू हमारा टूट जाता है। वज़ू क्यों? तो बाज़ वो कुत्ते नज़र आते हैं, बाज़ को ख़वातीन नज़र आते हैं, इसका नाम शर्म नहीं। बहरहाल ये हदीस शर्म के बारे में है। अब दूसरी हदीस सुनिए इस आयत की शरह में। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे हुक्म है कि किताल करो। यहाँ भी है उसरुहुम वक़्तुलुहुम, है ना जी। देखिए उसी की शरह है ये, हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ तक वो गवाही दें इसकी। उसके बाद वो युक़ीमुस्सलाह व युतुज़्ज़का फ़ैदा फ़ालु ज़ालिका असम मिन्नी दिमाहुम व अमवालुहुम। अब जब ये करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, तो वो मुझसे महफूज, उनके खून। इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, यानी क्या? कोई किसास, किसी को कत्ल किया है, किसी की आँख फोड़ी है, उसके बारे में वो हिसाबुम अलल्लाह, और उनका हिसाब अल्लाह पर। तो इसमें कितनी चीज़ें समझनी है। पहली बात यह है, जैसे मैंने शरह किया, कि एक तो ईमान ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर वो गिरफ्त से नहीं बचेंगे। ये उन्होंने मुँह से शहादत दी तो अमल से शहादत दें, जिसकी वजाहत अभी हो चुकी। अच्छा, अब जब अमल से शहादत देंगे वो क्या? युक़ीमुस्सलाह व युतुज़्ज़का, नमाज पढ़ें, ज़कात दें। ये किसके लिए कहा जा रहा है? आज हम कहें कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो उसे कत्ल करो, नहीं, ये हुक्म नहीं दिया जा रहा है। उस वक्त के हालात उन मुशरिकीन के लिए जिन्हें मोहलत दी गई थी, अब उन्हें चाहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वरना फिर आयत को दूसरी तरफ मैदान में ले जाएंगे तो ये दुरुस्त नहीं। उनके बाबत कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ और जो मसला समझना है, सुनिए, कि अगर वो ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो महफूज। फिर क्या कहा जा रहा है? हिसाबुहुम अलल्लाह। इसको समझिए, हिसाबुहुम अलल्लाह क्या मतलब? नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे, अब उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, तलवार नहीं चलेगी, इल्ला कि किसी को कत्ल करें। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हिसाबुहुम अलल्लाह। इसको हमें समझना है, क्या मतलब हिसाबुहुम अलल्लाह? इसलिए कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो कहते थे कि ये तो खाली ईमान दिखावे के लिए लाए हैं, ये दिखलावे की नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस्लाम ने एक उसूल कायम किया कि जो कोई मस्जिद की तरफ आता जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फशहद लहू बिल ईमान, वो मोमिन है। जो कोई हमारे साथ नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, उसका शुमार मुसलमानों में होगा। अब अगर अंदरूनी तौर पर वो मोमिन नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी क्या? रसूल की नहीं, रसूल की भी जिम्मेदारी नहीं। अंदरूनी कैफियत को टटोलना, हम कहाँ हैं हमारे मुसलमान भाई? अंदरूनी कैफियत को टटोलना रसूल की भी जिम्मेदारी नहीं। वो कहता है कि हम ईमान ले आए। देखिए कुरान शरीफ में आए थे, बदवी आए थे, आमन्ना लन तुमिनु कूलू असलमना, हम क्या? इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ें, शहादत दें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, बस। तो एक चीज़ इसमें हमारे समझ में आती है कि ये जो मुशरिकीन, इन्हें जो वक्त दिया गया 4 महीने का, जिन्हें मुद्दत का, कुरान शरीफ, इसमें क्या था? यही था कि आप आ जाएं, शहादत दें। शहादत दे दी। अब ये नहीं कह सकते ये तो कट्टर है, ये अंदरूनी तौर पर दुश्मन है, नहीं। और मुनाफिकिन की मिसाल हमारे सामने है। तो बहरहाल ये दर्स है, और मोहब्बत रसूल के बारे में भी वजाहत कर चुका हूँ। अभी कि इसके बाद अगर कोई तशनगी है, लेकिन इतना जहन में रखिए कि अभी आयतें तौबा की चलेंगी, अभी तो इब्तिदा हुई है। मगर एक पस मंज़र मैंने आपको बताया, अब जंग हुनैन है, उसके बाद तबूक से वापसी वगैरह। तो अल्लाह तबारक तआला हमें, लेकिन कोशिश ये करें कि इन बातों को लोगों को समझाते जाएं, ताकि हमारी कौम, हमारे भाई किस कदर पीछे हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कहिए जी। जी हाँ।
من آمن بالله वलियौम आखिर, वाल यौमिल आखिर वो जी, अकाम सलाह, सलात व आतु ज़कात, जी ये तीनों चारों चीज़ें तो अहले किताब में भी थी उसको। जी ज़कात उनके हिसाब से जो उनकी शरीयत से जो अदा करते थे, जी सलात भी अपने हिसाब से पढ़ते थे, जी, और आखिरत पे यौम आखिरत पे भी यकीन रखते बहुत अच्छा, जी थे। ये चीज़ मुअतदीन में वो लोग उस वक्त आएंगे नहीं आएंगे। हाँ। इनका सवाल जो है ना, ये जो कहा जा रहा है कि जो ईमान अल्लाह पर और आखिरत पर और अकाम सलात और ज़कात है ना, तो ये बात चल रही मुशरिकीन के ताल्लुक से। अच्छा, अब यहूदियों के बारे में ये आयत इसलिए चस्पानी होती कि जहाँ उन्होंने आखिरी रसूल का इनकार किया तो ये सारी चीज़ें हबीतत, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने से इनकार किया। जब उन्हें उनका इनकार किया तो उनका किताब पर ईमान नहीं, जिस किताब में लिखा हुआ था कि इस्मो अहमद, उस किताब के भेजने वाले पर का इकरार नहीं उनका, तो लिहाजा उनके लिए आयत नहीं है। नहीं, इसमें जो ये आमना बिल्लाह है, हाँ, लेकिन वो मुखातबिन कौन है? ये मुशरिकीन से खिताब है कि आप ईमान ले आएँ, ज़कात दें और नमाज पढ़ें तो वो तामीर कर सकते। सारा जो है मुअतदीन में नहीं आएंगे उसको। नहीं नहीं, जो उस वक्त अच्छे थे, जी जी, अमार और रौबा, नहीं वो और चीज़ है, वो उस इसके पहले थे, लेकिन ये ऐलान होने के बाद वो इस मुहतदिन में नहीं आते। सबसे पहला फ़र्ज़ आखिरी रसूल पर ईमान। जी कहिए। रसूल के आने के बाद आमना बिल्लाह, ये मतलब रसूल उसमें शामिल हुए, हाँ जी कोई बता ईमान जी, रसूल में ईमान शामिल हो जाता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने तक ईमान क्या था? उनका जो रसूल है उस पर ईमान, उनकी किताबों पर ईमान। लेकिन रसूल जहाँ मबूस हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन पर ईमान लाना उनमें शामिल हुआ। बिल्कुल सही है। अगर उन पर ईमान नहीं तो जैसे कि लम यकुन लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, वो तो ईमान वाले नहीं हो सकते, क्योंकि नबी का इनकार करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके नबियों का इनकार हुआ और उनकी किताबों का इनकार हुआ, तो वो मोमिन नहीं। जी, बाकी वो मसाइल नहीं, वो और हैं, वो किताब और ज़बीहा वो और चीज़ है। जी कहिए। भारत 20, हाँ ईमान लाए, जी, हिजरत की, जिहाद, जी फिर जो है अपने माल के साथ ये औलाद जी, मस्किन, हाँ उनका दर्जा बहुत बड़ा है। जी जी जमाना ये अमल जो है कैसे जो है करेंगे? जी, इस ज़माने में, हाँ ये अमल होगा कैसे? जी, है ना, ये सवाल ये, हाँ आगे 6 जो है जो दर्जा हाँ जी जी ये अमल कहीं ऐसा तो नहीं खत्म हो गया? जी, हाँ कब होना चाहिए क़यामत तक? अगर है तो ये कैसा करेंगे? जी, सवाल इनका समझ रहे हैं ना कि ये जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, तो उनके लिए आज़म दर्जा और फौज, और फिर ये रब, रहमा, रिदवान, आहा, तो क्या ख़त्म हुआ? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। नौयत तब्दील हो गई है। नौयत कैसे? हाँ जी, अब हम कैसे करेंगे? हम कैसे करें? नौयत तभी तब्दील हो गई। देखिए, सबसे पहले हिजरत है ना, हमें हिजरत किससे करना है? जो हमारे दिमागों में जो रसूख किया हुआ है ना, शिर्क बिल्लाह, इससे हिजरत करना है हमें। हिजरत के माने क्या? तर्क। उन्होंने क्यों तर्क किया था? कि वहाँ अल्लाह की तौहीद, रिसालत पर वो अमल करने का मौका नहीं देते थे, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे तर्क करें, सही मोमिन बने। ये आ गया हिजरत में। जिहाद, कौन सा जिहाद? देखिए, हम जिहाद की ज़रूरत है कि नहीं? हमें बच्चों को पढ़ाना है, उर्दू, अरबी, ग्रामर, कलाम पाक का मुताला, कोशिश, ये जिहाद, जिद्दोजहद, कोशिश करना है और इस्लाम को फैलाना है। तो वो काम हम पर भी वाजिब और ज़रूरी है, बल्कि हमारा मनसब है। सिर्फ नौयत तब्दील हो गई। और नौयत कैसी तब्दील हो गई है? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर आवाज़ दी थी कि सुनो, अब वो आवाज़ हम किस पे? माइक पर लगाते हैं। बस यही फ़र्क हुआ है और कुछ नहीं, बाकी ये ख़त्म नहीं हुआ। सवाल बहुत अच्छा और माशाअल्लाह तकमीला हुआ। जी थोड़ी सी प्रश्न की है, हाजिर को आपने अभी तफसील बताई है। जी जी अगर हम सूरह निसा की 97 आयत में जाएं, जी इसमें अल्लाह मलाइका जो है वो बंदे से पूछ रहे हैं कि तूने हिजरत क्यों नहीं की अगर ऐसा मसला था? जी जी ठीक है ना, उसने जी पूछा ना, जी तूने जी गुनाह क्यों करके आया? जी उसने कहा कि मैं, क्या नाम है, यानी मैं मजबूर था। जी ठीक है ना? जी उन्होंने कहा ना कि अल्लाह की ज़मीन इतनी छोटी पड़ गई थी कि तो हिजरत नहीं करता। हाँ। इसको अगर उसके हाजरों से अगर आप लें, हाँ, ये तो फिर डिफरेंट हो जाता है। नहीं डिफरेंट नहीं होता है। असल में ये
हिजरत जो है जिस वक्त इस्लाम सब तरफ फैला, फतेह मक्का के बाद तो अब हिजरत की ज़रूरत नहीं रही है ना। आपको ऐसे हदीस मिलेंगे कि आप हिजरत नहीं, अब फतेह मक्का हुआ और सब ईमान ले आए तो अब हिजरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज अब हिजरत की क्या ज़रूरत है? अब कोई ऐसी सरजमीन है जहाँ निदा न होती हो अल्लाह की, अब ये हिजरत की ज़रूरत है। लिहाजा फ़र्क कुछ नहीं है। अगर फर्ज करें हाँ। कि एक आदमी है हम्म, वो जिस खत्ते में रहता है हाँ तो वहाँ वो मजबूर है उस कानून को माने। हाँ इस आयत में सूरह निसा की आयत में हाँ 97 जो है 98 97 जो है जी जी इसके अंदर फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं कि तू इतने गुनाह क्यों पाया, तो वो कह रहा है मैं मगलूब था। हाँ ठीक है, जो वो मगलूब था तो हाँ। उससे गुनाह हुए। जी तो अल्लाह के फरिश्ते क्या कर रहे हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी छोटी पड़ गई थी कि तो वहाँ से हिजरत नहीं कर सकते, ठीक तो है। वहाँ उसकी पकड़ है। हाँ, और यहाँ नहीं है। और यहाँ पे हाँ। आप definition कोई और कर रहे हो। हाँ, तो ये फ़र्क है। हिजरत हाँ। तो है ना इसमें। नहीं, फ़र्क है। देखिए असल में फ़र्क, मेरी बात को आप सुने अभी, फ़र्क क्या है देखिए। उस वक्त क्या था कि जिसने कहा कि अल्लाह अकबर तो उसकी पिटाई होती थी, है ना। आज ये चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि ज़ालिमिन और फासिकिन, आज अगर वो किसी जगह पर मजबूर है तो ज़ालिमिन में नहीं, फासिकिन में है। जैसे हमारे रहनुमा, यानी आजकल जो खामियां हो रही हैं वो ये है कि वो कानून कलाम में पाक के नहीं चला रहे हैं। तो काफ़ी फ़र्क है। आज हम जिस बस्ती में हैं या जिस शहर में हैं तो हम क्या कहेंगे उन्हें, हमारे हुक्काम को क्या कहेंगे? इस दूसरी जद में आएंगे, पहली जद में नहीं आते हैं। चूँकि आपको कोई मना करता है मसाजिद बांधे, तामीर से मना नहीं करता है। यानी इस फ़र्क को समझे। मस्जिद हम तामीर कर सकते हैं, अजानें होती हैं, नमाजें होती हैं, अब क्या नहीं होता है? तो आप जिद्दोजहद करें, आप खुद कोशिश करें अमन व अमान से, जो हमारा जो मनसब है। यानी फ़र्क है, आप ज़रा गौर से समझें इस बात को। यानी जी नहीं, रुकावट है जी। और वो पोजीशन और ये पोजीशन में फ़र्क है। वहाँ तो उन्हें ये इसलिए पूछा जाएगा कि वहाँ तो अल्लाह का नाम ले ही नहीं सकते ना, इसलिए आज का तो नाम ले सकते हैं। चलिए हमारे हुक्काम ऐसे हैं, नाम तो ले सकते हैं अल्लाह का। मस्जिद तो उन्होंने कभी नहीं बंद किए। तो ये फ़र्क है। जैसे कि जी यहाँ पर मौका ये है कि जी, हम किसी बुराई से रुक जाएं, हाँ, हम गोया हिजरत कर ये हिजरत हुई। तो यहाँ पर यहाँ के जो मुफ्ती हैं उन्होंने जो फतवा दिया था मुझे बहुत पसंद आया कि अगर हाकिम ये कहे कि आज जुमा की नमाज यहाँ नहीं होगी तो आप यहाँ ना अदा करें। कहाँ अदा होगी? तो फलानी मस्जिद में, तो उसको आप तस्लीम करें। जैसे मदीने में हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि जुमा की नमाज बंद। तो हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, जुमा की नमाज हमें पढ़ने से मना किया जा रहा है। नहीं, एक मसलियत है, कुछ उसका इंतज़ाम है। तो इस चीज़, यही चीज़ है आजकल। तो हिजरत किस, हाँ ईद की नमाज हाँ मस्जिद में नहीं होगी तो हाँ, तो ये उनके, जैसे कि अभी मदीना में कल सुना है कि आवाज़ आई थी कि अपने अपने घरों में नमाजें पढ़ें। अब लोग परेशान हैं, सवाल करने लगे ऐसा जायज़ है क्या? मैंने कहा तो कोई नाजायज़ काम कर रहे हैं क्या? जायज़ तो है। उन्होंने क्या कहा आपको कि कोई रुकावट है तो आप घरों में नमाज़ पढ़ें। तो ये बहुत अच्छा कि आपने जो सवाल किया। तो ज़रा साफ कर लें बातचीत को कि मुहाजरत हिजरत अब वो नहीं। हाँ, ये हो सकता है आजकल छोटे छोटे बस्तियां जो है ना, कहीं कहीं 2-3 मकानात रहते हैं मुसलमानों के हैं और बाकी सब गौरों के, तो वो कर सकते हैं कि अपनी वो जायदाद बेचकर किसी अच्छी बस्ती में आ जाए। ये कर सकते हैं, मतलब वो फी नफसी है। इस आयत में दो चीज़ें मिली हैं आज जी कि जहाँ जो है जद्दोजहद हुई हाँ, और हिजरत जो है ये तर्के गुनाह, तरके बना। तर्के शिर्क। जहादू फी सबीलिल्लाह क्या होगा? जी, जहादू फी सबीलिल्लाह, फी, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में हम कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए आज आप अपना कीमती वक्त, कातिलू फी सबीलिल्लाह क्या होगा? वो उनका पस मंज़र वो था कि जो आपको अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं उनके लिए था वो पस मंज़र। अब वो इस्लाम कबूल, जी नहीं, आज इजाज़त है, नहीं आज इजाज़त है बस कानूनी तौर पर। आप अपना निज़ामिया कायम करें, रोकते हैं बाय फोर्स नहीं, अल्लाह का नाम ले नहीं यार, कानूनी तौर, नाम की बात नहीं हो रही। हाँ। आप एक निज़ाम कायम करना चाह रहे हैं अगर, जी तो वो रोकते हैं। नहीं, वो तो निज़ाम जो है ना हम तो नहीं चला सकते ना, ये उनसे वो सवालात होंगे किनसे, जो हमारे जो हुक्काम हैं उनके, वो बहस उनकी है, हमारी नहीं है। हम तो अपने मुकल्लफ हैं, अपनी जिद्दोजहद करें। अब रहा वो जाने, उनसे बातचीत करें कि हमारा कानून क्या, आपका कानून क्या है, इसमें हमारी मुदाखलत नहीं है। और ये तो मैं बार बार कहता हूँ। तो बहरहाल चलिए और भी सवालात करते रहें ऐसे, ताकि के लिए बाहर से कमाना करना ये भी जिहाद में शामिल है ना। जी हाँ, ये भी जिहाद है। नहीं हमने ऐलान किया था जंग के बाद कि
जिहाद कभी बंद नहीं होगा। बिलासी, हाँ। हाँ, कि जिहाद जो है बीवी के मुंह में लुकमा देना, ये भी जिहाद है, ये भी सदका है ना, है कि नहीं। और हिजरत, गुनाहों से बचना, ये भी हिजरत है। लेकिन वो हिजरत भी है, नहीं ऐसा नहीं, जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं आपको बताता हूँ, जी। मेरा एक दोस्त था, उसको जॉब मिल गई कजाकिस्तान के कोई एरिया में, अच्छा तो डबल सैलरी से यहाँ से ले गया उसको कतर से। अच्छा, तो माशाल्लाह। बोला 4 गुना सैलरी मिलेगी, अरे चला गया। चला गया। उसको सैलरी 4 गुना दिया, दी। लेकिन 6 महीने में वहाँ से भाग के इंडिया चला गया। अच्छा। क्यों? बोले मैंने अजान तक नहीं सुनी। हाँ मुझसे। देखो, है ना, ये हिजरत। तो बोला मुझे ऐसा लगा कि मैं काफिर हो जाऊंगा, क्योंकि 6 महीने ना वहाँ मस्जिद है न कुछ है, ना अजान होती है, हाँ, बोले एक नमाज नहीं पढ़ी मैंने। माहौल। बोले कि मैं क्या बनी। जी जी, तो माहौल का असर छोड़ने की जरूरत है, इसीलिए तो लोग आजकल जा रहे हैं ना। मेरे ख्याल से कुछ लोग जाते हैं कहाँ, कनाडा, अमेरिका, शायद वहाँ माहौल ज़्यादा मिलता होगा, मुझे तो अंदाज़ा नहीं उसका। जा रहे हैं, हिजरत तो कर रहे हैं, तो वहाँ शायद यहाँ से अच्छा माहौल मिलता हो, उन्हीं से पूछे जो गए हैं। चलिए, हाँ हिजरत तो जी जी, हाँ तो वो जिसके लिए, अब वो हम क्यों कहें, वो उनका मसला है। चलिए माशाल्लाह। तो इलियास साहब ने वो अच्छा इशारा किया, वो हिजरत का मार करते रहे माशा, वो आस्ते आस्ते इसी